हमने स्टार्ट कर दिया था पहली वाली relative lowering in vapor pressure. Was that clear to everyone? न्यूमेरिकल भी हुए थे उस पे. Write down the second. करने हैं हो गए थे ना. Elevation in boiling point. Right? Elevation means increase. To get elevated means to get increased. Boiling point, everybody knows. Ishita, what is boiling point? Point when the atmospheric pressure equals to liquid. That's correct. अब ये सुनो. This is a liquid और इस liquid के ऊपर मान लेते हैं ये closed liquid है. यहाँ पे जो pressure exert हो रहा है, this pressure is atmospheric pressure, right? As I start heating this liquid, it will start forming, and slowly, those vapors, they will start exerting a pressure, which we call as, and slowly that vapor pressure starts becoming equal to. So the temperature at which, the temperature at which the vapor pressure of a liquid, by this hand represents the vapor pressure of the liquid. ऊपर से जो exert हो रहा है, that is the atmospheric pressure. So when the vapor pressure of a liquid becomes equal to, then by keeping it aside, the vapors will start, the liquid will start boiling. At what temperature it happens, that temperature is called as boiling point. Right or not? इसके ऊपर based है ये सारी property. So write down temperature at which the vapor pressure liquid, at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Right है? तो मतलब no doubt कोई बच्चा बोलेगा सर temperature at which liquid boils. I agreed. But why does liquid boil at only 100 degrees centigrade if it is water? So at 100 degrees centigrade, water's vapor pressure becomes equal to, taken as 1 atmosphere. So atmospheric pressure को हम 1 atmosphere लेते हैं. Now let us see it all graphically. कोई कुछ नोट नहीं करेगा ये. Just इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, and I will not need to speak a single word for this colligative property. So it is vapor pressure this side. क्या होगा इस side? Temperature I'm taking in degrees centigrades. This represents Andhra Pradesh. है ना? This is atmospheric pressure. Okay, अब मैंने क्या लिया solvent. At this temperature, solvent का vapor pressure ये था. अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे solvent को heat करूंगा. What I expect in this very plot, जो ये curve है, इसमें क्या changes expected है? मैं बता रहा हूं कि इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर ये है. Now I slowly start heating it. Will the vapor pressure also start increasing? Yes. So as I start heating the solvent, vapor pressure keeps on increasing. At this point, what happens? अब बताओ ये B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? The point where boiling point तो यहाँ पे आएगा ना, पर इस टाइम पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? The vapor pressure of the liquid has become equal to the temperature corresponding to this point is called as
Boiling. The boiling point of the pure solvent. Understood by everyone? बताओ boiling point की definition यहाँ से clear होती है कि नहीं? Temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Yes. अब हम क्या करेंगे? बताओ, जल्दी बताओ क्या करेंगे हम? इस सॉल्वेंट में सोल्यूट डालेंगे और सोल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। और जैसे ही मैं सॉल्वेंट में सोल्यूट डालूंगा वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का प्लॉट तो सॉल्वेंट से नीचे ही चलेगा, और सॉल्वेंट से नीचे चलेगा तो आपका जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जाके यहीं आएगा। सो आप अपने आप देखो, सॉल्वेंट विच वाज बॉइलिंग एट दिस टेम्परेचर, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, दैट इज बॉइलिंग एट दिस टेम्परेचर नाउ, डिड द बॉइलिंग पॉइंट गेट एलिवेटेड? दिस इज कॉल्ड एज elevation in boiling point. So suppose at the very same temperature जिसमें solvent का vapor pressure ये है, solute has lesser, again not solute, sorry, solution ये, फिर मैंने solution को heat किया, उसके vapors बनने start हुए, kept on increasing, vapor pressure kept on increasing, and this temperature at which the vapor pressure of solution becomes equal to, now what will this called as? Boiling point of solution, and this is a colligative property called as elevation in boiling point. अब रुक जाओ, बताओ, without saying anything, is the graphs explanatory? Is it explaining everything ना? That's it. But let me explain. बता रहा हूँ, सॉल्वेंट का क्लियर है सबको? सॉल्वेंट में हमने डाला सॉल्यूट विच इज नॉन वॉलेटाइल, और आपको पता है सॉल्यूट क्या करेगा? सॉल्वेंट के कुछ सरफेस साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेसर वेपर्स आर फॉर्म्ड। लेट मी शो इट ऑल। ये देखो, ये आपके पास सॉल्वेंट है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट एट द सरफेस। अब जब आप इस लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट अ टाइम, हाउ मेनी वेपर्स गेटिंग फॉर्म्ड? ये। अब जब ये वाला वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा तो सॉल्वेंट बॉइल्स, यस और नो? फिर मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट डाला, दैट सोल्यूट इज, अब उस सोल्यूट के नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से आप अपने आप देखो, lesser number of vapors are formed. In order to make these vapors equal to the atmospheric pressure, more of heating will be done, because vapor तो यहीं से निकलने हैं अब, तो जितनी ज्यादा heating करोगे तभी vapor pressure उसके बराबर होगा. That's why the temperature, the boiling point gets elevated. Am I clear? Listen to the language. On adding a non-volatile solute, lesser vapors are formed. Yes or no? और पहले देखो ये थे 5 वेपर्स बन रहे थे एट अ टाइम, सो वेपर प्रेशर वाज बिकमिंग इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे देखो ओनली 1 वेपर इज गेटिंग फॉर्म्ड। अब इसी साइड, इसी मॉलिक्यूल के थ्रू मोर हीटिंग करनी पड़ेगी सो एज टू मेक द वेपर्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर। अंडरस्टूड? If the pure water boils at 100 degrees centigrade, on adding NaCl to water, the solution will boil above 100, below 100, or equal to 100. If the pure water boils at 100 degrees centigrade, on adding a non-volatile solute called as NaCl, the solution will boil at a temperature above 100 degrees centigrade. That's why boiling point remains one of the very important tests to check the purity of a solvent. अगर आपने एक liquid की purity check करनी है, उसका boiling point check करो. If I have to check the purity of water, I will check the boiling point. If it is 100 degrees centigrade, it means it does not carry any impurity. But अगर वो 100 से ऊपर boil कर रहा है, it means definitely it is carrying some impurities. Is everything clear? If clear, then you can draw the graph. Anyone having doubt can ask it.
कैसे कर रहा है तू आज सेलिब्रेट फिर? खुश नहीं? घर वालों को कोई खुशी नहीं है? ओके। डन है? अगर मैं 1 मिनट भी यहाँ खड़ा हो गया ना, आवाज आएगी कहीं से, वहां से आएगी बात। बोल जल्दी बोल। हाँ मैं भी साइड हो गया। आज बर्थडे देख किसका है? TB is the boiling point of solution. TB naught, boiling point of the pure solvent, or you can simply call it as solvent. And delta TB is elevation in boiling point. Is boiling point a colligative property? No. It is elevation in boiling point which is a colligative property. Done है? हटा दो इसको। Now let us see what all happens mathematically now. टर्म सारी क्लियर है? डेल्टा टीबी सबसे पहले इज इक्वल टू टीबी माइनस, बिकॉज डेल्टा टीबी विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव वो तब होगा जब हायर वाला बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस विल बी द लेसर वाला. सो दिस इज 100 एंड दिस इज 104. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Delta TB elevation in boiling point, TB which is the higher one comes the first and then the TB naught. Then we have delta TB is directly proportional to the molality of the solution. Molality सबको पता है? Anybody needs to be exposed? Molality. Center में. yes sir. Molality क्या है? ठीक है, इतना सुनना था. More than good. Delta TB is molality, number of moles of solute per kg of solvent. क्या molality क्यों नहीं कर रहा मैं यूज? वो टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, molality तो खुद ही चेंज होती रहेगी. So that's why we are using molality here. Removing the sign of proportionality, where Kb is a constant. बोल डालो. किसी ने क्लास में सुन लिया गलती से कहीं पे स्कूल में? आज पढ़ के नहीं आई. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb को तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट याद कर लो. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट. एविलियोस्कोपी इज द साइंस ऑफ हाई टेम्परेचर्स. सो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी एट हाई टेम्परेचर्स. पे आप कभी भी कोई फिनोमिनन स्टडी करोगे, that will fall under a branch of science called as avilioscopy, whatever you pronounce it like. So as we are talking about elevation in boiling point, it is also called as avilioscopic constant. अभी रुक जाना. अभी
If m becomes equal to 1, equation 1 modifies as delta TB is equal to. Anybody would like to define KV from here? KV को define करें केंद्रीय विद्यालय वाले. Please. Change in the elevation. Change in the elevation. दो change हो गए ये. एक तो change हुआ और elevation भी change ही है. It is elevation in boiling point when the molality of the solution is 1. so 1 molar solution का जो elevation in boiling point है that is called as molar elevation constant. मैं अपने आप लिखाऊंगा और define कराऊंगा इसको. So now delta TB is equal to KB into WB into over. सारी टर्म्स एक बार देख लो. What is it? अब मुझे बताओ ये जो elevation in boiling point है, is it in degree centigrades or in kelvins? It can be in both because this is a difference and difference is equal on both the scales. Yes or no? अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे तो 5 केल्विन भी तो इंक्रीज हुआ. डिग्री सेंटीग्रेड में वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड गया और केल्विन में वो 273 टू 278 केल्विन गया. ठीक है. सो दिस इज डिफरेंस. इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा. चेंज के बेस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ द सॉल्वेंट. ये हमेशा सॉल्वेंट के लिए बताया जाएगा. ठीक है. WB mass या weight of the non-volatile solute. MB molar mass of the non-volatile solute 1000. WA is mass of solvent in grams. करो अब इसको नोट कर लिया. करिए नोट. नहीं बोलूं. लिखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. एलिवेशन कांस्टेंट. पहले सिंपल डेफिनेशन लिख लो. इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Elevation in boiling point of a 1 molar solution. Elevation in boiling point of a 1 molar solution. Define हो गया ये. Now, Kb for H2O is 0.5 Kelvin kg per mole. मोलर जो कांस्टेंट है दे आर नॉट टू बी क्रैम्ड. प्लीज आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे जो भी सॉल्वेंट होगा. और वाटर का हमने इतनी बार यूज करना है कि जस्ट स्टार्ट मेमोराइजिंग इट स्लोली. बट स्टिल इसको भी क्रैम नहीं करना है. आई वांट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. अगर वाटर का केबी 0.52 है तो हाउ डू आई मीन, व्हाट डज इट मीन?
इसमें इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यूनिट लगे हैं ना 3। सोच लो पहले कि ये केल्विन क्या है, केजी किसके लिए बोला जा रहा है और मोल किसके लिए बोला जा रहा है। जो इसको ढंग से बोल देगा उसको सॉल्यूशन चैप्टर यहां तक पूरा क्लियर है। आई विल एज्यूम इट। क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हो तुम लोग? श्योर? कितने कर रहे हैं ऑनेस्टली बोलना? बाकी नहीं कर रहे हैं ना, और ऑनेस्टली वो एग्री कर रहे हैं इस चीज को। वो क्यों नहीं कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं? बताओ कितनी बार मैं ये चीज बोलूंगा और कैसे बोलूंगा, स्ट्रिक्ट होके बोलूं? सबको बताया जा रहा है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है हमारा, अक्टूबर तक हमारे सिलेबस को खत्म करके वी विल डू 11th देन। यार क्यों नहीं करेंगे हम? और तुम कभी चांस ही नहीं देते इस चीज का कि मैं 11th 12th को ढंग से बाइंड अप करूं एंड फिर हम 11th को रिवाइज करेंगे। तो 12th करने के लिए तुम्हारे को पैरेलल करनी पड़ेगी। समझते हो मेरी बात को? प्लीज डू। अब आ जाओ, वहां टॉपिक लिखा हुआ है, मॉडर्न वाली बुक में देखोगे लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करो वो। कल पिछली क्लास में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, सारा इतना टेक्निकली डिफाइन किया गया, चीज इतना सिंप्लीफाई किया गया है। और जब वहां पर कंपटीशन में बैठते हैं तो सबको पता यार ये भी कहीं किया था, ये भी किया हुआ है, पर आता नहीं उस टाइम पे। ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, फिर फायदा क्या हुआ बाद में रिग्रेट करने का? दो चांस मिलते हैं यार जेई में। एक चांस में कम से कम पता लगेगा, दूसरी चांस में हम क्लियर कर देंगे। अंडरस्टैंड इट? करो फिर। चलो शाबाश। प्लीज, मैं देखो हाथ भी देख लेना मेरे, प्लीज। तुम्हारे को नहीं कर रहा हूं प्लीज। हाँ ठीक है, एमसीक्यूज ट्राई करो। रिक्वेस्ट, प्लीज इसको ट्राई करो। कम ऑन एनीवन? यस प्लीज। Elevation for water at Kelvin at 1 Kelvin below by mole. नहीं, और सबसे पहले बताओ, तुमने बताना है। अब देखो कौन है ये, बिकॉज वाटर की बात करें तो वाटर है, कितना वाटर है? खत्म कर दिया ना इसको। अब मोल, अपने आप सोचो ये मोल किसका हो सकता है? सॉल्यूट का ही होगा ना। सो वाटर विच बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आई विल कॉल इट एज TB नॉट। इस वाटर में ऐड किया 1 मोल ऑफ नवोदय विद्यालय है, 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राइट। अब बन गया सॉल्यूशन। Now the boiling point of the water which was on adding 1 mole of non-volatile solute, the boiling point of the solution becomes understood or not? अपने आप समझो। So elevation in boiling point, so not KB. Molar elevation constant is the elevation in boiling point when 1 mole of a non-volatile solute is added to। तीनों चीजें आ रही है देखो। Elevation in boiling point on adding 1 mole of non-volatile solute to 1 kg of solvent। तो इसका मतलब है 1 kg वाटर में आप कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दो। यहां पर कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, NaCl, KCl। यू एड एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रोवाइडेड वो कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 0.52 से राइज करेगा। अंडरस्टूड? अब उस डेफिनेशन पे आओ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो बताओ जो ये वाला सॉल्यूशन है ये 1 मोलर है कि नहीं? 1 mole of solute in 1 kg of the solvent. So 1 mole of solute in 1 kg of the solvent, whatever elevation happens, that elevation will be called as. Am I understood? So मैंने तुम्हें बताया हमेशा किसके लिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ? सॉल्वेंट का। क्या डाला? सॉल्यूट। कितना?
1 mole. That's why the word per mole. So लिखो ये question. Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. What does this means? सारा लिखा हुआ है. Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. What does this mean? हो गया. So लिखो, that means when 1 mole of non-volatile solute, when 1 mole of non-volatile solute is added to, when 1 mole of a non-volatile solute is added to 1 kg of water, 1 mole of a non-volatile solute is added to 1 kg of water, its boiling point gets elevated by 0.52 degrees centigrade or Kelvin. Its boiling point gets elevated by 0.52 degree centigrade or Kelvin. Is this clear? अगर मैंने 1 kg वाटर में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स गेट्स एलिवेटेड बाय दिस मच, जिससे पूछूंगा वो बताएगा. पहले क्वेश्चन से सुनो. मैंने 1 kg वाटर लिया, उसमें मैंने सोल्यूट डाला और बॉइलिंग पॉइंट में इतनी एलिवेशन मिली. हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिड आई ऐड? सोचना है. पहले क्वेश्चन क्लियर है. 1 kg वाटर में कोई सोल्यूट डाला गया और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट हुआ. सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिड आई ऐड? हर्षित 0.1. दैट्स वेरी करेक्ट. बिकॉज एक मोल डालने से देखो कितनी एलिवेशन हो रही है, 0.52. अब उससे 1/10 हो रही है, तो इस वाला सोल्यूट भी उससे 1/10 डाला. 1 का 1/10 इज 0.1. ये चीजें हैं. और अगर एलिवेशन में इतनी कर दूं 10 मोल, अब वो टेक्निकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, दैट्स अनदर केस. 10 मोल इन 1 लीटर विल बी अ बिग सॉल्यूशन. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक इट द 0.1 वाला वे. क्लियर हुआ ये? पक्का? टेक 1 मिनट ऑन इट एवरीवन. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखो, सारे के सारे सिंबल्स देखो, केबी की बात करते हैं, and then we'll start with the numericals. Anything anybody wants to ask? TB is tuberculosis. TB is the boiling point of solution. जिसके ऊपर नॉट लग गया ना, ये प्योर सॉल्वेंट है. जो दूसरे वाला है वो सॉल्यूशन है. बस सिंपल वे. यस प्लीज. हाँ बोल. आज इसके दिमाग में बर्थडे चल रहा है. मेरा बर्थडे था 29th of February. मान भी गया है. पता क्या, मैं बर्थडे बता दूंगा ना, पार्टी देनी पड़ जाएगी यार. क्या पता, इतनी उम्मीदें नहीं है मेरे तुम लोगों से. इतना तो मुझे भी समझ आ गया तुम लोग. अब बहुत धोखे खाया मैंने. ये मेरा बर्थडे आता है सितंबर में. डेट अगली क्लास में.
पीएम ऑफ इंडिया के साथ मैच करता है मेरा बर्थडे। जिस दिन पीएम का बर्थडे है उस दिन मेरा होता है, ये पता कर लेना गूगल करके, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। You didn't like it? लाइक तो करता है। हाँ। बढ़िया लगती हाँ तो बैठ जा। है। जाने में फोन आया थे। योर चॉइस। जाने है, हम वेट करेंगे। लिखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 18 grams of glucose is dissolved in 1 kg of water. Calculate the boiling point of the solution. 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. Calculate the boiling point of the solution. KB. For water, you know how much? 0.5 Kelvin kg per mole. Karo simple है, then we'll go for the next ones. जल्दी से। मैंने पूछा क्या? I asked you the boiling point of the solution. 100.052 आगे यूनिट। 100 तो केल्विन में नहीं आएगा, सेल्सियस, और केल्विन में 373. अब सिंपल सी बात सुनो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विल मेक 0.1 मोल. 0.1 मोल मींस दिस पॉइंट विल शिफ्ट यहां पे, ठीक है। मतलब वो तो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, बिकॉज जो ये एलिवेशन है ये कितने मोल्स के लिए है? 1 मोल के लिए। 18 by 180 gives us 0.1 mole. 0.1 mole means elevation will also be 1/10. Delta dB आ गया, from that we can calculate. So delta dB, kb कितना है? WB over 1000 over ये delta TB comes out to be 0.052. अब स्टूडेंट यही छोड़ के आ जाते हैं इसको। Now this is not the boiling point of the solution, it is only the elevation in boiling point. Now we use the formula delta TB is equal to TB minus delta TB आया 0.052. TB को अगर मैं 373 ले लेता हूं, सॉरी, TB is to be calculated. So TB will come out to be 373.052 Kelvin. और कोई 100 लेगा तो 100 आगे डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। बोथ आर करेक्ट, पर कोशिश करनी है आंसर को केल्विन में रिपोर्ट करो, बिकॉज केल्विन इज द एब्सोल्यूट स्केल। ये क्लियर है? तो इसमें देखो मैंने कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं किया, जस्ट केप्ट इट 18 सो दैट यू कैन बेसिकली गेट एन आइडिया। So please don't leave the question here. ये नेगेटिव है ना इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आगे। यहाँ पे नेगेटिव है 373 है। डन है? अब लिखो द क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऑन डिसॉल्विंग
on dissolving 3.24 grams. On dissolving 3.24 grams of sulfur in 40 gram of benzene. 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, comma. Boiling point gets elevated by 0.81 Kelvin. Boiling point gets elevated by 0.81 Kelvin. What is the molecular formula of the sulfur? What is the molecular formula of sulfur? Any extra information I need to give? Question ढंग से पढ़ो. क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या चीज है जो मुझे बतानी है. ये भी किसके लिए? सल्फर के लिए या बेंजीन के लिए? तो solvent is benzene, so Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole, and atomic mass of sulfur, I hope you people know, is 32 grams per mole. कोई अपने आप करेंगे? मैंने बोला न्यूमेरिकल, ट्राई योरसेल्फ, लेट इट बी रॉन्ग, डजंट मैटर. Online students can hear me? Yes, sir. Question clear है ये? Yes, sir. So how are we doing it? What's the plan? कुछ प्लान तो होगा, न्यूमेरिकल कर रहे हो and everybody thinks to be using pen, कॉपी पे पेन यूज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोच के कर रहे होंगे. WB तो दिया हुआ है, MB निकालना है. और एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी MB निकालने में यूज हो सकती है. मैं करवाता हूं इसको. अब मैं बताऊं, ये क्वेश्चन इजीली MCQs में बहुत अच्छा इंटर कन्वर्ट करता है.
डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, लिखता जाऊं साथ में ही। 2.53, WB कितना है 3.24, 1000 ओवर, राइट है। क्या ये वैल्यू पता है? Yes. हाउ मच इज इट? 0.81, इसका और इसका 4 का कन्वर्जन है, ठीक है। MB comes out to be 253 grams per mole. पहले सुन लो सारे। No, what I want to emphasize, 4 colligative property हमने करनी है, and all the 4 colligative properties can be used to find out the molecular mass of the unknown volatile solute. अब मैंने यहां आपको बता दिया ना कि ये कौन है, सल्फर। पर मैं अगर सल्फर ना भी बताता तो अपने मॉलिक्यूलर मास तो उसका निकाल ही लिया था, तो उसके आगे कुछ और प्रॉपर्टी सल्फर की बता के वी कुड हैव आइडेंटिफाइड सल्फर। सो एक चीज समझो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फायदा क्या है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट डाला गया है वो कौन सा है। दिस इज हाउ ऑल द डायग्नोस्टिक टेस्ट एटसेट्रा आर कंडक्टेड। किसी के ब्लड सैंपल के अंदर निकोटीन डिटेक्ट हो जाता है या कुछ भी डिटेक्ट हो जाता है, these are all these type of the methods which are used there. So whatever is being done, that is not a syllabus that has been framed for you, that is what practically the things will be used somewhere. सबसे पहले ये चीज समझनी है कि यार सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट ओनली कि 12th का सिलेबस बनाना था तो बना दी, these are the things being used around, ठीक है। अब अपने आप देख लो, सॉल्वेंट था, उसके अंदर एक सॉल्यूट डाला था, मुझे नहीं था पता, मुझे इतना बताया गया था कि कितना है 3.24, और सॉल्वेंट कितना है, और सॉल्वेंट का ये तो मैं पता कर ही सकता हूं फ्रॉम दैट। देखो आई एम क्वाइट नियर टू फाइंडिंग आउट द सॉल्वेंट है। 8 क्या सिंबल है? S8 बोले फिर भी मैं एग्री कर जाऊंगा, S8 इज करेक्ट। अब ये आ गया, इसके आगे S8 कैसे आया? Okay, you are very correct. Let me show how to put it on the paper. Suppose the formulae of sulfur is, ठीक है, सल्फर का फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला और सिंबल में क्या डिफरेंस है? जिसको पता होगा रेज द हैंड। डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मूले एंड अ सिंबल। फॉर्मूला उसकी स्टेबल स्टेट हो, कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कौन सा है। कांग्रेस का क्या सिंबल है? आपका सिंबल इज फॉर एन एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट को आप एटॉमिक फॉर्म में लिखोगे वो सिंबल है, whereas formulae is for a molecule. H2O is a molecule, O2 is a molecule, a group of atom is a molecule. जब आपने group of atom लिखना है तो वो formulae बन जाएगा, because that will be a combination of different atoms or same atoms, more than one. But जब अकेला लिखा Na, अकेला लिखा Cu, that will be the symbol. अब बताओ इसको मैं symbol लिखूं या formula लिखूं? यहाँ पे formula, because it will be more than one sulfur atoms. चलो कितना लिखना है मुझे यहाँ पर? X into atomic mass of sulfur, जो मुझे पता है 32 है, what value I have to write here? 253, वो मॉलिक्यूलर मास बनेगा। अब जैसे देखो O2, अब आपको कोई बोलेगा O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, आप बोलोगे 2 into एटॉमिक मास ऑफ, यही करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कितना आ जाएगा? तो अब हमने मॉलिक्यूलर मास तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल लिया, एटॉमिक मास हमें पता है, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, विल गेट द फॉर्मूले, ठीक है। सो एक्स इंटू 32 इज इक्वल टू 253, एक्स विल कम आउट टू बी 253 बाई
32. Because 32.8 is a 256. And it is very near to that, it will be 7.9 something. So approximately equal to. So X की value कितनी आ गई? So as X comes out to be 8, the molecular formula of the sulfur is S8. Could you understand it? ये मैंने सपोज किया फॉर्मूला क्लियर है. दिस इज अ नंबर. इस नंबर से इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, है ना? वही किया मैंने. सो आई सपोज कि सल्फर के फॉर्मूला में सल्फर इज कमिंग x टाइम्स, सो x into the atomic mass of sulfur will be equal to the molecular mass. X into atomic mass of sulfur is 32. Molecular mass from the colligative property is 253. The value of x comes out to be 8. Putting the 8 in place of x, I get it as 8. है MB की वैल्यू मतलब कुछ MB की वैल्यू, अगर हम उसको भी MB की वैल्यू तो MB की वैल्यू तो हमने निकाली है, वो पता कैसे लगेगा? वही निकालनी है. तू अगर देखो ये एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल करना है, तुम्हें जो जो चीजें गिवन है तुम लिखना स्टार्ट कर दो ऐसे गिवन. अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? 3.24 ग्राम ऑफ द सल्फर. सल्फर इज द सॉल्यूट. WB becomes MB. मुझे नहीं लगता, मुझे पता है. WA 40 grams. KB for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. अब बताइए सारी चीजों को देख के, और डेल्टा टी भी कितना दिया है? अब बता, जो हमारा डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला उसमें एमबी को देख के बाकी तो सब कुछ पता ही है. मुझे खुद पता लग जाएगा यार, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, फिर आगे सोचूंगा. दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन. न्यूमेरिकल करने का ये तरीका होता है. जो वैल्यू दिए उनको सिंबल्स में लिखना स्टार्ट करो, एंड स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट गेटिंग देम. आई एश्योर यू. अगर हम ऐसे मतलब हमें MB पता है कि सल्फर है, मॉलिक्यूलर मास ओके, अब जैसे ये बोल रहा है कि सर मुझे पता है ये सल्फर है, सल्फर का मास 253 निकल गया. तुम्हें आगे पता नहीं है कैसे करना है, पर वी नो दैट सल्फर इज S8. तो इतना तो लिख के आ ही सकते हो ना कि द फॉर्मूला कुड बी S8. नहीं, जैसे मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर में पता है वो क्या है? एमबी की जगह 32. जैसे मॉलिक्यूलर मास पता है सल्फर का, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? लग गया ना पता? क्वेरी क्लियर होगी? अगर तूने गलती से बोल दिया ना मॉलिक्यूलर मास 32, तू भी जाने वाला था बाहर. वो अपनी मर्जी से गया, तू मेरी मर्जी से जाता. इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एमसीक्यू करने को. बताओ अच्छा लगा ये क्वेश्चन करके? एक फीलिंग आई ना कि कुछ किया आज? स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स. किसी बार एनसीईआरटी तो नहीं है? चौबे को मिल जाएगी, यही होगी, इसमें है. लिखो a 5%. This is a good question. A 5% aqueous solution of a non-volatile solute. A 5% aqueous solution of a non-volatile solute has a vapor pressure of 745 mm of Hg. A 5% aqueous solution of a non-volatile solute, चाहे उसको X मान ले तो X मान लो. A 5% aqueous solution of a non-volatile solute
has a vapor pressure of 745 mm of Hg at 373 Kelvin. 373 Kelvin. Calculate the molecular mass of the non-volatile solute. Calculate the molecular mass of the non-volatile solute. सबसे पहले, this question is on which colligative property? ठीक है, करो. Question will use the numerical expression of relative lowering in vapor pressure with the concept of elevation in boiling point. ये कॉपियों में क्या ढूंढने लग पड़ते हो पीछे से? फॉर्मूला भुला देती हो इतनी जल्दी? हाँ, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हमारी को क्या करेगी? पढ़ो, उस वक्त से प्रैक्टिस कर, डाउट्स लेके आ. अब तू इस साल देख, कम से कम तू थोड़ा रेगुलर तो होने लगा है ना, तो चीजें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी. यू आर रेगुलर नाउ, दैट्स अ गुड थिंग है. है पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस पिछली क्लास में किया नहीं है यार. तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स. और मैं बताऊं, अगर कुछ बच्चों में मुझे इंप्रूवमेंट नहीं लगी, मैं पेरेंट्स बुलाऊंगा. फिर इतने सिंसियरली आते हो तुम लोग, एप्रिशिएटेड, वेल बिहेव्ड हो, नाइस टू टॉक टू हो यार, पर पेज पीछे करते रहते हो बस. अब ऐसा इतनी जल्दी भूलेगा कोई रियलिटी? पिछली क्लास में तो किया है यार. तो आपको पता है, अगर वेपर प्रेशर की बात की है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से काम चलाना पड़ेगा. नो एवरीबॉडी लिसन्स हियर. पी ए नॉट माइनस पी एस, और मैंने बोला था ना, ये फॉर्मूला में पूरा का पूरा आपको मैथमेटिकली जस्टिफाई करके दिया था. दैट इज इक्वल टू जैसे ही तुम्हें पता लगा कि यार ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल है, आप उसका एक्सप्रेशन लिखो. फिर आप अपना न्यूमेरिकल पढ़ो और गिवन चीजों को लिखना स्टार्ट करो. मैं बताऊं, न्यूमेरिकल आने शुरू होंगे. A 5% aqueous solution, that means 5% aqueous solution, 5 grams of non-volatile solute is in 100 gram of solution. So non-volatile solute 5 grams, it becomes, W is 5 grams. As total solution is 100, so WA becomes. तो अब देखो, ये चीज आ चुकी है, ये चीज आ चुकी है, और ये चीज तो कैलकुलेट करने को ही बोल रहा है. और एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है तो MA आ गया.
18 grams per mole. For the time being MB का पता नहीं है मुझे, है ना? Shift to the left side. I have PA naught. अब इतने वेरिएबल्स में से अगर MB पता नहीं है तो PA नॉट और PS तो पता होने पड़ेंगे ना. तो अब आपको पता है कहीं से भी मुझे PA नॉट और PS तो पता होंगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से पता लगेंगे. What is PS? Because जो ये 745 mm of Hg है, ये 5% aqueous solution का वेपर प्रेशर है, तो it is 745 mm of Hg. The question is all about getting a PA not. कोई बता दो अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस है. अब बताओ, ये होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस. ये क्वेश्चन मैं बताऊं बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें मैं अब हिंट भी दूंगा तुम्हें. देयर आर टू वर्ड्स जो आपको PA नॉट कैलकुलेट करने में हेल्प करे. myself 373, they can help you get PA not. अब बताओ aqueous means solvent is 373 की क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की लाइफ में? And when does water boil? When its vapor pressure becomes equal to how much is atmospheric pressure? And 1 atmospheric pressure in mm of Hg is 760. दोबारा बोलूं, एक्वस है तो सॉल्वेंट वाटर है और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करके 373 बोला था. 373 मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इमेजिन यू हैव वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इज इट बॉइलिंग? एंड व्हेन डज वाटर बॉइल? व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आज स्टार्टिंग में बोला था 1 एटमॉस्फेयर है, एंड दैट 1 एटमॉस्फेयर इन mm of Hg is 760 mm of Hg. कितनों को पता लगा ये? पक्का ना? बस. So it is 760 minus 745 over WB. As far as I remember, this might be somewhere here. बाकी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना. बताओ हो जाएंगे क्वेश्चंस ये? तो एक सिंपल क्वेश्चन के साथ then we'll shift on to the next. I want everybody doing it. लिखो, a solution of glycerol. अब नया वर्ड आ गया लाइफ में. A solution of glycerol. बताऊंगा मैं क्या है. A solution of glycerol in water was prepared by mixing some glycerol in 500 gram of water. A solution of glycerol in water was prepared by mixing some glycerol in 500 gram of water. The solution has a boiling point of ये
100.42 degrees centigrades. Solution has a boiling point of 100.42 degrees centigrade. लिख लिया? What mass of glycerol was dissolved in the solution? What mass of glycerol was dissolved in the solution? Kb water का यहां पे जो क्वेश्चन में दिया गया है that is 0.512 Kelvin kg per mole. No doubt it is 0.52. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यू. What do I need to tell you now? So let's tell me what tell you what glycerol is. It's a triol. IUPAC ने बोलेगा कोई इसका? ऐसे पूछ लिया मैंने, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आराध्य बोलेगा. तो सीधा 10 से 12 आ गया है. Anyone? Prop 1 to 3 triol. Propane 1,2,3 triol. क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? C3 कितने H है? 2, 3, 2, 5, 8. ठीक है, it is C3H8O3, the condensed formula. तेरी कॉपी का है? मैं बताता हूँ क्वेश्चन. कहां तक लिखा है? सॉल्यूशन ग्लिसरॉल वाटर. इतना मिक्स पीछे रह गया तू. बाय मिक्सिंग some glycerol in 500 gram of water. डेल्टा टीबी कितना बताया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया क्वेश्चन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये 100.42. अब तूने क्या निकालना है कि हमने कितना ये डाला है, जो ये पूछा है ना, बाई एडिंग सम ग्लिसरॉल, ये निकालना है. तूने भी लिखा है? क्यों? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ यार, कुछ बच्चों से मिस हुआ है, जो बाकी करते रहो. A solution of glycerol in water is prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. Solution has a boiling point of 100.42 degrees centigrade. What mass of glycerol was added to the solution? What mass of glycerol was added to the solution? Yes. तुम बोलो. Very correct. आगे यूनिट भी बोलो. 37.7 क्या? मोल, ग्राम्स. It is grams. Grams per mole नहीं है, because we are calculating WB not MB.
कैलकुलेटर से किया ना? पक्का? गुड. वाई मिनट सोल्यूशन का दिया है. हाँ, और वाटर 100 हमें पता ही है. बस सोचना क्या है इसमें. क्वेश्चन में लिखा हुआ उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100. मैंने बताया नहीं बिकॉज दैट इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड. सबको पता है ना डेल्टा डीबी कितना है? 0.42 आया. बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब नहीं बताया जाएगा. दैट इज 100. सो हाउ मच इज निकालना क्या? डब्ल्यू बी. डेल्टा डीबी इज 0.42. जिसको डाउट है बात करे. डाउट इस पे? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बता कितना है? टीबी 100.42. तो टीबी नॉट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ग्लिसरॉल को हम किस में ऐड कर रहे हैं? वाटर में. तो सॉल्वेंट तो वाटर ही हुआ ना. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. डब्ल्यू बी हमें निकालना है. एम बी कितना है? 92 ग्राम्स पर मोल. यही निकला ना? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास 92 आया. और क्या है? डब्ल्यू ए कितना है? 500 ग्राम. के बी गिवन है 0 पॉइंट. बताओ क्या बचा इस न्यूमेरिकल में? हो जाएगा. सो इट इज के बी 0.512 WB over 92,000 over कितना? So WB is coming around 37.73 grams. अब तुम बताओ इस तरीके से करने से न्यूमेरिकल्स में लग रहा है ना थोड़ा सा आइडिया. Always do this. Whatever values are given, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबको क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जस्टिफाई. अगर एक मार्क का क्वेश्चन ये है सब्जेक्टिव, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जस्टिफाई. तो आप बोलोगे आपने इतना भी लिख दिया ना, वहां डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल एम. डन है. 0.42 elevation in boiling point. इन दोनों का difference. So I was saying, if it is asked to justify that elevation in boiling point is a colligative property, you write down delta TB is equal to small m, or you can even write elevation in boiling point depends upon the number of solute particles, because colligative property बोल रहे हो तो number पे depend करेगी. Done है? लिखो third. A very negative word we are going to talk. डिप्रेशन. पेपरों से पहले बहुतों को हो जाता है ये. पता नहीं फरवरी मार्च में ज्यादा होता है ये. साल भर ठीक रहते हैं, फरवरी मार्च में डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. एंजाइटी. ठीक है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हाँ जी है. क्या नहीं बनाना? घबराना नहीं. मुझे ऐसा लगा सर आपने घर नहीं बनाया है. मैं ना बर्थडे वाले दिन ये भी बोलेगा ये. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. So before we go into the depression thing, let us talk depression हुआ क्यों. It is the definitions are not same, the value is same. कोई बताएगा freezing point क्या चीज है? Temperature at which a liquid freezes. What जैसे हमने boiling point को define किया था in terms of pressures,
सेम तरीके से डिफाइन करेंगे. राइट डाउन. फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature. Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the solid and the liquid forms of a substance at which the vapor pressure of a solid and the liquid phases of the same substance become equal. The vapor pressure of the solid and the liquid forms of a substance becomes equal, and hence they can coexist at that temperature, and hence they can coexist at that temperature. एक बार लाइन पढ़ो before I start explaining it. वाटर और आइस को माइंड में रख के इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करो. कौन था ये? फ्रीजिंग वाटर के हिसाब से बोलता हूं. फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द आइस, दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाटर बिकम्स इक्वल. राइट. सो प्लॉट देखना शायद कुछ एक्सप्लेन करेगा ये आपको. क्या क्या? ग्राफ बहुत ज्यादा. अब मैं फ्रीज कर रहा हूं तो आई एम विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन. अब देखो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर है तो देखो वेपर प्रेशर भी हाई है. सॉल्वेंट की बात की जाएगी. अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा व्हाट विल हैपन टू द वेपर प्रेशर? इट विल स्टार्ट, ये डिक्रीज होता गया आया पॉइंट बी. अब यहां पर ढंग से देख रहा, दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट एंड दिस इज, तो इस पॉइंट पे आके जो आपका ये सॉल्वेंट है वो सॉलिडिफाई करना स्टार्ट कर देता है. तो मुझे बताओ अब ये देखो, ये वेपर प्रेशर किसका हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट हुआ है ना यहां पे इक्वल. टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इट विल बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर. बताओ समझ आ रहा है? ये मैं आज करा के जा रहा हूं, मैं इसको यही छोड़ के जाऊंगा और मैं अगली क्लास को दोबारा स्टार्ट करूंगा. अभी टाइम लगता है उसमें समझने की कोशिश करूं. आई विल स्टार्ट इट एज न्यू इन द नेक्स्ट क्लास. अपने आप देखो, लिक्विड सॉल्वेंट वाटर मानो, वाटर लिया, धीरे धीरे उस वाटर को मैंने टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट किया. वाटर का वेपर प्रेशर केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, आया पॉइंट बी. पॉइंट बी पे वाटर हुआ और इस पॉइंट पे जब मैंने वाटर, लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर चेक किया, दे वर ऑलमोस्ट सेम. अब इस पॉइंट पे मुझे बताओ, बी पॉइंट पे द लिक्विड एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट आर कोएग्जिस्टिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. अब बताओ किसकी बात करनी है? सॉल्यूशन की. अब बताओ सॉल्यूशन का प्लॉट यहां पे चलाना है कि यहां पे? बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर. तो जब उसका प्लॉट ही नीचे है तो देखो ये आ रहा है, यहां आके मिलेगा ये. ठीक है. सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. कम होता गया यहां पे आके. अब अगर मैं इसको सी लेता हूं, मुझे बताओ व्हाट डज पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स? इस पॉइंट पे देखो किसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया? नो, व्हाट इज दिस? लिक्विड फॉर्म ऑफ द, और यहां पे तो चल ही रहा है सॉलिड. अब बताओ ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ
the liquid form of the solution and the solid form of the solution becomes, इसको क्या बोलेंगे? Of the solution इसको क्या बोलेंगे? अब ये क्या हुआ? कुछ लगा पता? इसका मतलब है वाटर में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालो, बॉइलिंग पॉइंट जो पहले ही ज्यादा है वो और ज्यादा हो जाता है, दैट गेट्स एलिवेटेड, और वाटर में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालो, फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले ही कम है वो और कम हो जाता है. सो प्योर वाटर freezes at 0 degree. and impure water will freeze at a temperature lesser than 0 degree centigrade. ढंग से देखो इसको, डेफिनेशन कुछ क्लियर होती है? ग्राफ देखो, कुछ भी नोट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जस्ट हैव अ लुक एट द ग्राफ एंड आस्क एनीथिंग. अब देखो वेपर प्रेशर की बात की जा रही है, किसकी? एक लिक्विड की, फिर भी बनता है वैलिड. एक सॉलिड के वेपर प्रेशर की बात की जा रही है विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो दैट इज बिकॉज हम अपने लिक्विड को इतना ज्यादा कूल डाउन कर चुके हैं कि अब उस लिक्विड के वेपर्स बनने ही ऑलमोस्ट बंद हो गया है. एंड एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. उसके बाद तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं है. सॉल्यूशन का प्लॉट नीचे है तो नीचे चलेगा एंड एज अ रिजल्ट लोअर टेम्परेचर पे जाके सॉलिड से मिलेगा. तो एज अ रिजल्ट TF विल बी लेसर देन TF नॉट. अगर ये 0 है तो ये -5 हुआ ना. सो दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. बाकी मैथमेटिकली सारा कुछ सेम है, बस एक बार ये पॉइंट क्लियर होगा, जहां B लिखा था वहां F लिखना है हर एक्सप्रेशन में. एवरीथिंग इज सेम. तो अगर एक बार एलिवेशन क्लियर हो जाए, डिप्रेशन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है. ठीक है? एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? नहीं? भागने की तैयारी है? अच्छा, इसके बाद करते क्या हो तुम लोग? घर में जाके पढ़ाई वगैरह करो. Fundamental maximum